राइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दानियाल सदीकी है एंड आई एम बैक एट इवॉल्व टॉक। थैंक यू वेरी मच गाइस। और सबसे पहले लॉट्स ऑफ अपॉलजीज दैट आई हैव बीन लेटली away for few sessions. So my colleague Aman have been doing session, um, but I'm back and back with a bang, and we'll be having lots of sessions, lots of discussions, बहुत सारी बातें, and we'll be making sure that more and more such sessions that we have been bringing on platform Evolve वो आपके लिए लेकर आए। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, जब हम सेशंस की हमने बात की एंड वी हैव बीन टॉकिंग, हम बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी से बात कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने नाम बनाया है, कमाया है। तो जब हम बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो एवरीवन लुक टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी या कुछ आईटी से रिलेटेड किया जाए। और पाकिस्तान हैज़ बीन अ वेरी फ्रूटफुल प्लेस फॉर आईटी टेक्नोलॉजी। अभी पिछले ही हफ्ते आई हैव हर्ड दैट लास्ट 1 year it has been overall good for IT services being exported from Pakistan. तो हमने सोचा, इवॉल्व की टीम ने सोचा, मेरी टीम जो रिसर्च R&D करके सक्सेस स्टोरीज को उठा के लेकर आती है, तो फिर वी टॉक्ड अबाउट ब्रिंगिंग सच सक्सेस स्टोरीज जिनको हम पाकिस्तान में प्रेजेंट कर सकें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो सच टेक्नोलॉजी कंपनीज आर देयर हु हैव बीन प्रोवाइडिंग अमेजिंग सॉल्यूशंस। सो जब हमने ये नाम लिया तो माय colleagues Aman and Nazifa came up with a name which needs no introduction, and I wanted to interview him myself so that we can identify कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, how uh, different format of technology have been used, और किस पाकिस्तान में future of technology क्या हो सकता है. So that is why we decided to bring Mudassir Salim Malik on the show, and I would like to warmly welcome Mudassir with us. Mudassir, Assalamu alaikum, and welcome to Evolve Talk. Good to hear you, and good to have you with us on the show. I think your mic is muted as well, so you need to unmute your mic yourself because that's what you can do. Jaza- Welcome Jazakallah first khair. of Thank all, you so much. Mudassir. कैसे हैं जी आप? हाउ आर यू एंड हाउ इज लाहौर वेदर ट्रीटिंग यू? Alhamdulillah Rabbil Alameen. Lahore's weather is like superb right now. We had like full day बारिश होती रही है और कल रात को it was like, कहते हैं ना क्या कहते हैं वो cats and dogs वही वाला था. Yeah, it rained cats and dogs. Acha ji, for all those people who don't know, I'll introduce Mudassir. Mudassir Salim Malik is the CTO at Kharpar Technologies. And along with that, of course, आप लोग जानते होंगे, he is a CEO and founder of a very organization which is bringing and turning stones apps, Janai Technologies, a successful technology company which was established back in 2010. Mudassir holds a degree in software engineering, and since then he has skillfully managed the growth of apps, Janai Technologies, and started various ventures, including the blockchain research labs, Dental Connect, and code working. Mudassir is also the former director and Founders Institute president, Startup City Lahore, and is also a part of mentoring panel with incubators and accelerators include Inspire, Jumpstart, Microsoft Spark, and Accent Technologies. और सबसे अहम बात entrepreneurship की आप बात करें पाकिस्तान में, this guy is always there guiding youngsters, entrepreneurs. क्या बात होती है, किस तरह से होती है. So we wanted to have him today so that we could talk about how, why, what are the ingredients of being a successful entrepreneur, और बहुत सारी बातें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करेंगे. मुदस्सिर, अगेन थैंक यू वेरी मच. मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जब आप आईटी का नाम लेते हैं, टेक्नोलॉजीज का नाम लेते हैं, मुदस्सिर मलिक नेम इज ऑलवेज देयर. माशाल्लाह माशाल्लाह. एंड आई वुड लाइक टू हेयर योर स्टोरी. हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? जब सोचा था कि इट विल बी ऑल आईटी रिलेटेड स्टफ, या बस इट हैपेंड? Not at all. मैंने बीकॉम ज्वाइन किया था. तो वहां से आपको पता है पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि वो मेरे एक अब्बा जी के एक दोस्त थे उनके बेटे सीएस में थे. हम्म. मैंने कहा जी आपने भी सीएस में जाना है तो मेरे 6 माह बीकॉम के निकल चुके थे तब तक. मैंने कहा जी आपने सीएस में शिफ्ट होना है. सो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स सीएस. इससे पहले मेरा जो इंटर था वो भी सीएस में था. तो वो चीजें जो थी ना वो ऑटोमेटिकली रोड मैप बनता जा रहा था उसके साथ. अच्छा लेकिन ये कि माय बैकग्राउंड इज कि नो वन इन माय फैमिली वाज फ्रॉम टेक एट ऑल. जीरो. Or most of my family members either they were like self-employed in terms they were in business,
textile, or otherwise they were in constructions business, or the third side was they were either in army or somewhere on the jobs. So मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे यही था कि कन्विंस कैसे करना है कि यार अपना काम करने लगे. तो उससे पहले अगर मैं इसका बैकग्राउंड लेके चलूं तो I was born in Karachi. I was raised in Islamabad and in Bhavalnagar and in Bhavalpur, Peshawar, uh, Islamabad for a good time again. Then Rawali, Kent, Gujranwala, and then finally I shifted to Lahore. So we're basically Lahorians, but due to my father's job, we were moving a lot. तो मेरी स्टडी जो थी वो बड़ी डिस्टर्ब कभी नहीं हुई, लेकिन ये कि मेरी स्टडी जो थी, कभी मैं लाहौर एपीएस में हूँ, कभी मैं इस्लामाबाद एपीएस में, तो मेरी मूवमेंट इसमें बहुत ज्यादा रही है. फाइनली जो सीएस था, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स फॉर मी कि सीएस करने के बाद आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि व्हाई नॉट गो फॉर द टेक. ओके फाइन, बट आई वाज वन पैथेटिक डेवलपर. When it comes to coding, I had zero sense of coding. Zero. And I'll say like explicitly that one thing and very bluntly, कि यार zero sense of coding थी मेरे पास. So my partner अभी right now Adnan, yeah, he supported me a lot. कि यार ऐसे कर. So I kept on moving. तो मेरे ख्याल में शायद ये एक चीज थी जिसने मुझे पुश कर दिया सीएस की तरफ. But Apps Gen was formed in 2010. Before that, I was on a job. 3 to 7 मेरी graduation थी, और 3 to 7 के बाद I was not coming directly to Apps Gen. I went for a job. CS technology companies में as a developer. Or from there I got my basic experience. From there I believe so. That was the time where I met my tech godfathers, all of them. Or wahan se then I moved for my own company. But moving towards my company was not a straight jump. It came with a discipline. कि यार first you have to go. You know what business करते कैसे हैं? As a developer आपने कैसे काम करना है? As a business analyst कैसे काम करना है? So for that one period I like spent good 5 to 7 years. Then I moved towards Apps Gen. So when you talk about mentors, या ऐसे लोग जो इंस्पायर करते हैं, एंड लुकिंग फॉर दैट, आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि आप लोगों से काफी सीखते हैं. यूनिवर्सिटी से तो सीखते ही हैं और जॉब से सीखते हैं, लेकिन लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं. So who was the biggest inspiration for you to, look towards the development side or IT side? That one personality. This is going to be the trickiest question. उसकी reason ये है. Yeah, because अगर आपने किसी को mention ना किया ना तो वो नाराज हो सकते हैं. यार देखा मुदस्सिर ने मैंने mention नहीं किया था. It happens. यार ये थोड़ा सा वो सीन हो जाएगा, वो नहीं होता जो एक्ट्रेसेस वाला. ये थोड़ा सा वो सीन बन जाएगा, लेकिन मैं I'll be very honest with that one part. दानियाल, जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो there was a software house, Solution Heights. ठीक है, मैंने वहां पे ज्वाइन किया था. उस वक्त सीईओ थे उसके आतिफ मलिक साहब. तो आतिफ मलिक साहब के रेफरेंस से जो लोग वहां पे थे ना, उस प्लेटफॉर्म पे मुझे मिले हैं. हाफिज साकिब, मीर अनवर, कैफुल वरा साहब, वसीम भाई, ये वो सब लोग थे. बिलखुसूस काशिफ जावेद भाई, ये वो सब लोग थे जिन्होंने, आप यकीन करें कि मुझे बताया था. You know what, a born baby is absolutely dumb and deaf. उसको कुछ नहीं पता कि कौन सी चीजें कहाँ पे कैसे हैं. उसके लिए एक उसको आप उठा के झूले में रख देंगे तो उसके लिए एक नई दुनिया है. उसको बेड पर रख देंगे तो एक नई दुनिया है. तो वो उस वक्त जब मैं एंटर हुआ था टेक के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये 4-5 नाम वो थे जिन्होंने मुझे रूट से सपोर्ट किया. उस रूट की सपोर्ट के बाद आई बिलीव इन दीज थिंग्स सो so intensely कि ये वो चीजें थी जिन्होंने ना सिर्फ इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बल्कि जहां मैं गलत हूं तो मुझे गलत कह भी रहे हैं. अगर मैं सही हूं तो उस चीज का क्रेडिट भी दे रहे हैं. उसके बाद जब मैं जॉब्स में आगे आया तो फिर 2 लोग हैं बहुत खास हैं. एक मरिया नोल्स, शी वाज my COO in title developments, और the other guy was Imran Bashir.
he was my CEO in Aptlet. ये वो 6-7 नाम तो खास तौर पे हैं जिनके बगैर आई वुड से कि मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है खास तौर पे टेक के अंदर, इनके नाम लिए बगैर वो नामुकम्मल है मेरे लिए, बिल्कुल नामुकम्मल है। दीज वर, और दानियल अभी तो यार ये चीजें बड़ी कॉमन हो गई हैं। कॉमन होने के अलावा इन चीजों में आप जैसे आप कह रहे हैं एक बहुत बड़ी सपोर्ट अवेलेबल हो गई है सबके पास, उस वक्त नहीं थी। ठीक है, लाइव सेशंस नहीं थे, आप किसी से मिल नहीं सकते थे, व्हाट्सएप इतना कॉमन नहीं था, लोग किसी से बात करते हुए या किसी से मिलते हुए लिटरली डरते थे कि यार मैं इससे पूछूंगा तो ये क्या सोचेगा, या ये मेरे बारे में क्या राय कायम करेगा। और शायद एक वो भी टाइम था कि लोग अपनी ओपिनियन शेयर भी नहीं करना चाहते थे। तो नाउ टाइम हैज इवॉल्व्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 चीजें बदली भी हैं, एनवायरनमेंट भी बदला है, लोग करना चाह रहे हैं। मेंटरशिप अब इंट्रोड्यूस हुई है, तब ये वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक राइट, है, मुदस्सिर, मैं दरमियान में क्वेश्चंस भी करूंगा, जी प्लीज। कीप ऑन आस्किंग इन बिटवीन एज वेल। अच्छा, मैं अब आपसे थोड़ा सा, बिकॉज मैं अगर मैटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ कि आप उस दौर में आईटी को, टेक्नोलॉजी को, वेबसाइट्स को, एप्स को, सिस्टम्स को इंटीग्रेट आपने करना स्टार्ट किया when it was just a startup and people did not had a lot of facilities available at that time. अच्छा, मुदस्सिर मलिक ने स्टार्ट कॉमर्स से किया, उसके बाद टेक्नोलॉजी, CS was something which made him come towards IT side, mentors बहुत सारे मिले। ये जरा बुनियादी तौर पे मुझे ये बताइए कि currently if you look back towards 10 years, how has Pakistan IT industry or service providers who are providing local services or providing international services, exports to other areas, other world as well. So how has the overall IT industry come off over the period of let's say 1 decade? पिछले 10 साल में किस तरह से evolve हुआ है? जमीन आसमान का फर्क है दानियार, इसके अंदर तो मैं कोई दो राय नहीं है बात करने में। देखें, एक टाइम था जब आपके पास पाकिस्तान की गिनी चुनी कंपनी से जिनकी आप बात करते थे, ठीक है, इफ आई एम अलाउड टू से दैट देयर वर वेरी फ्यू नेम्स, 2 3 4, ठीक है, कैलसॉफ्ट, सिस्टम्स लिमिटेड, नेटसोल, फ्यू मोर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, और अब हमारा शायद उस टाइम पे थोड़ा सा हमारा बैरियर भी यही सबसे बड़ा था कि हम लोग समझते थे कि अगर उतने बड़े नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो टाइम और ये टाइम, इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, और इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, आपकी कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा हैंडी नहीं थी जितनी आज है। आपका मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे 80 to 90% क्लाइंट्स मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन है, ठीक है। स्काइप वाज वन ऑफ द मीडियम्स, अदरवाइज देयर वर अदर वेरी फ्यू मीडियम्स अवेलेबल जो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे थे। ऑन द गो कनेक्टिविटी कम थी। इंपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और सॉफ्टवेयर इंपोर्ट्स, इन दोनों के अंदर कोई ब्रिज अवेलेबल नहीं था। और मजे की बात यह, शायद गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी, मगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज छोटी कंपनीज तक अवेलेबल नहीं थी, या उनके बारे में लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो इस 10 साल के अंदर बहुत सारे ब्रिजेस क्रिएट हुए हैं, तो बहुत सारी जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है। पीएससीबी क्या कर रहा है आपके लिए, एसएससीपी आपके लिए क्या कर रहा है, आपके पास जो एसोसिएशंस हैं, पाशा या टेक जैसी, वो आपके लिए क्या कर रही है, ये अब पता लगना शुरू हुआ, ठीक है, लास्ट 4-5 साल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा समझें कि एक ड्रामेटिक शिफ्ट आया है लास्ट 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी। Absolutely agree. यानी कि you understand कि there is having lots of shift and overall technology evolution हुई है। मतलब सर मैं साथ-साथ questions भी लूंगा, और मैं अभी entrepreneurship की तरफ आने वाला था, IT से related। we you have a fan come friend of yours, Zain Al Abdeen, and he has asked you a question. Mudassir bhai, what made you take the decision to start your own business? What was your motivation? सर लगी भली सैलरी आ रही हो, काम चल रहा होता है, ये रिस्क लाइफ का लेना कितना आसान है? अभी मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, एंड आई वांट टू नो व्हाट मेड यू टेक दैट डिसीजन। दानियाल, ये जो वर्ड है ना एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने आपको सर्च किया ना, ये पहले नहीं था। ये कुछ वर्ड्स मैं आपको बता दूं, मेंटर, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सीलरेटर, इनक्यूबेटर, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे 10 11 साल पहले, ठीक है।
मैं एज एन इंडिविजुअल अगर आपको ये कहूँ कि यार मैंने मेरे पीछे कोई मोटिवेशन थी काम करने की या कोई पर्टिकुलर कोई रीजन था कि मैं इस चीज को इवॉल्व कर रहा हूँ या इसके अंदर इंक्लूड हो रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हम्म, एब्सोल्युटली जीरो। ठीक हम्म, है, मैं अच्छी जॉब के ऊपर था। ठीक है, मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे थे, मेरे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी थी, मेरे पास ग्रोथ बड़ी अच्छी थी। लेकिन जो एप्स जिनाए की तरफ शिफ्ट होना था वो मेरा अकेले का नहीं था। हम्म, ठीक है, मी एंड माय कोलीग अदनान ताहिर, वी टू एक्चुअली डिसाइडेड कि यार सबके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए क्यों नहीं करते। हम्म, वी दिस true, वाज द ओनली थिंग, ट्रस्ट मी ऑन दैट। यार हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए क्यों नहीं करते। हम्म, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं चलेगा। हम्म, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। true, तो true, शायद हमने वर्स्ट केस सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग के बाद ये चीज डिसाइड की कि यार लेट्स ट्राई, व्हाई नॉट। हम्म, हम्म, तो this was the only thing, and there was the motivation behind it was not something particular कि यार पैसे कमाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। शायद the one motivation we had initially and which is till date कि यार why not grow our work plate, हम्म, लोगों को अपने हम्म, साथ क्यों ना इकट्ठा करें, लाइक वो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना क्रिएट करें। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हम फील करते थे एज अ डेवलपर कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे साथ नहीं है, सो व्हाई नॉट ट्राई एंड गेट आउट ऑफ आवर साइड। ठीक है, गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। और जो करना चाह रहे थे या जो हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे साथ होता, तो वो हम्म। करके क्यों नहीं देखते। सो आई थिंक अच्छा, दैट वाज अ कोर मोटिवेशन। such a wonderful answer, Zain. I think the answer is there. The answer of his how or why उसका जवाब उन्होंने दिया। Why बात सिंपल सी थी और मैंने जो उससे नोट डाउन की, it's not the question of why, it's a question of why not. व्हाई That नॉट। is such a powerful answer from somebody who has been there and talking about entrepreneurship, and I think there is nobody better than you. अच्छा, जब हम बात करें मुदस्सिर, मैं अभी आईटी के हार्डकोर क्वेश्चंस पे आने से पहले ना आपसे थोड़े से क्योंकि आप nobody better than you can answer बिजनेस की सक्सेस स्टोरीज क्या हैं, कितने आपके हाथ से बच्चे निकले हैं जिन्होंने इवॉल्व किया है, आके गए हैं अपनी लाइफ में। What are the three mandatory qualities of successful business? And मैं ज़रा focus रहूँगा IT business because it's your field, you know it better. So please tell me about it. मैं इसके बाद apps जिनाए पे भी आने वाला हूँ. We'll show you guys who are watching. हम apps जिनाए की website पे भी जाएंगे, थोड़ा सा उसको भी देखेंगे. What are the services being offered through screen share that I will do. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये जरूर होगा कि जी तीन सवालों के जवाब, थ्री मैंडेटरी क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस और बिजनेसमैन। नंबर वन, हौसला होना चाहिए कि आप शेयर कर सकते हैं। नंबर टू, you are willing to sacrifice your family time as well as your personal time. और नंबर तीन, जिसके बगैर ये हर चीज नामुमकिन है, कि आपके पास ये बहाना नहीं है लोग क्या कहेंगे। ये तीन काम कर लें आप, ये तीन चीजें सबसे, यू नो इट्स द, आई थिंक द द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज, you do you have ability to share things with other people? Do you want to fill the gaps which you faced? And number three, do you want to create a change? If these three things, the answer is yes, go for it. सही। और ये एंड सिर्फ टेक के लिए नहीं है, this I believe this goes for everything. एब्सोल्युटली। अच्छा, अब मैं माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या होते हैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड पीपल। आप किसी को देखते हैं ना मुदस्सिर, तो आप देख के बता देते हैं कि हाँ यार ये कर लेगा भाई, दिस इज अ बिजनेस फील्ड, ही विल बी एबल टू डू इट। सो प्लीज ये जरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? दानियाल, आपने ना इंतहाई वो कहते हैं ना, ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है, आपने मुझे उसमें डाल दिया है। मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की ना एक वो देता हूँ, छोटी सी मिसाल। वो आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे जिनको गाना गाने का बहुत शौक होता है या जिनको गिटार बजाने का बड़ा शौक होता है, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लड़के हमारे साथ भी थे, सबके साथ होते हैं। यार कोई फंक्शन हो, कोई चार बंदे इकट्ठे बैठे हो, आप उनको एक दफा फरमाइश कर दें यार गाना सुना, वो शुरू हो जाएंगे।
True. उधर बारात के अंदर बैठे हो, 500 बंदे सामने बैठे होंगे कि जी गाना सुना, वो शुरू हो जाएंगे। Hmm. वो Hmm. 500 बंदा उठ के बेशक उनको गालियां दे रहा हो, अबे यार क्यों Hmm. दिमाग खराब कर रहा है। Hmm. उस बंदे ने ढीठ बन के आपको गाना सुनाना है। True. आप उसको True. मरासी कहें, आप उसको जुगते मारें, आप उसको गालियां दें, उस बंदे ने अपना जो एक उसका जो एक पैशन है ना, वो पूरा करके उसने अपने आप को ठंडा करके फिर आपकी जान छोड़ दी। वो Agree. होता है एक वर्ड, ढीठ। Hmm. तो अगर आप ढीठ है ना, Hmm. तो that is your secret ingredient that you can do whatever you want to do. Wonderful. Nothing else. Your consistency, your passion, your persistence, your resilience. This is the only thing. Otherwise, there is no serious ingredient which can be referred as something which the entrepreneur should have. No, you need to be absolute deep. You have मार to दो be, भाई मुझे आप। and 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 absolutely, and you have to be crazy, and you have to be passionate about it. These are the Absolutely. questions. अच्छा, मैं एक बड़े अहम सवाल पे आने लगा हूँ, and we all know that is AppsDeny website. If I have the correct website open, if I'm not wrong, Absolutely. right, Mudassir? अच्छा जी। जी, you started with AppsDeny and this idea came in. मुझे सबसे पहले थोड़ा सा concept बताइए. What was the thought? What was the market segmentation thought in your mind at that time, and what does AppsDeny offer actually? मुझे थोड़ा सा इस हवाले से clear करें. जी, absolutely. AppsDeny as a technology company, we started जब हमने 2010 में start किया था, so we were focusing just on two things, web, and that was like standard website design and development. Another thing was e-commerce. उस वक्त e-commerce का बहुत ज़्यादा craze नहीं था, मगर e-commerce उस वक्त in हो रही थी. So we started working on that one part. E-commerce पे देखते हैं, standard web design पे देखते हैं. Then we moved towards application development. So हमने application development के अंदर, which still are doing that. We work on native application developments. We work on cross-platform, including React Native. We work on Ionic. We work on SensorTouch. We work on Xamarin. Native के अंदर, we're working on both iOS and Android. The power play we have is that we specialize in Ruby on Rails development. And the other thing which we added like 3 years back in our portfolio is robotic process automation. So this is what we majorly do right now. हमारी ज़्यादा जो टीम है वो robotic process automation के ऊपर है, और Rails में हम enterprise development के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं. We do have a small team in house जो कि ज़्यादा फोकस करती है Shopify के ऊपर, WordPress के ऊपर, digital marketing के ऊपर. But that is, to be very honest, tier two. So the tier one team is more on enterprise development. We do custom developments most of the time. We do not have any product. We never had time to work on a product for ourselves. But Alhamdulillah, I am very proud to say that we probably have more than 20, at least like 2000 plus applications live, more than 1500 to 200, like 2000 projects actually being delivered, from a team of 2 people to a team of 70 people in Pakistan, then in US, and now in UK. Uh, this was a tiresome journey for us. But right now, we are focusing core on robotic process automation, Rails enterprise development, AI, machine learning, and obviously the native application developments. Wonderful, wonderful. अच्छा, मुझे जबरदस्त किस्म की बात लगी. Let us help you convert your ideas into reality and apps के अंदर जान डाल देना. So you have worked on so many projects with so many team members as well. मैं आपकी पूरी वेबसाइट से गुजरा, तो बड़ी डायनामिक वेबसाइट itself है. It gives such a good, cool feeling itself. So what is the target audience for all the people who are watching Evolve talks right now? कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके पास आए अपने बिजनेस को थ्राइव कराने के लिए? Are these new business owners, developed owners, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाना, उनके लिए ERP systems को बेहतर करना, उनके internal processes, या ये IT की services external website based होंगी? Who are actually the people who can come to you and ask you, Mudassir, we need help? अब हमारे 3 सेगमेंट्स हैं दानियाल इसके ऊपर. एक तो ये कि वी सपोर्ट स्टार्टअप्स अलॉट. तो स्टार्टअप्स के लिए हमने एक स्पेशल कोटा रखा हुआ है कि यार, यू नो व्हाट,
whoever is coming in, if they're a startup, if they're like a really good startup and they're very serious with the product, then we support them. The other quota or the other segment is that we work with SMEs, and the word which I'll say here is that we help in the digital transformation. Hmm. So आपके हर manual process को digitize करने के लिए we support you. And the third tier, which is like the top tier for us, is that we are helping the companies who are already in the phase of digital transformation. We're taking them to the automation level. Hmm. So we have these three segments of of a clientele right now, and Alhamdulillah, we're serving 98% of the clientele in US, Australia, UK, and we have like 2% of the clientele right now in Pakistan. वंडरफुल वंडरफुल अच्छा अब थोड़ी सी अगर हम ये बात करें स्टार्टअप्स की who can come and avail services, what sort of help they can expect from apps and I would that be in how to develop their external outputs like website apps development and all that, or I see a lot of Mudassir your talks, your inspiration for youngsters, you can help out with the concepts and ideas to make them a little better also. But Daniel, इसके ऊपर जो मेरी personally like as a startup company, as an entrepreneur, जो सबसे पहली assistance हम दे सकते हैं वो ये है कि to actually work and evaluate is your idea really valid or not. हम्म, ठीक है, आप इस आइडिया पे काम करना चाह रहे हैं, हम उसकी वैलिडिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं क्योंकि अक्सर और बेशतर बच्चों को इस चीज के मुतालिक बहुत ज्यादा आइडिया नहीं हो पाता कि वॉट एवर दे ट्राइंग टू डू इज दिस समथिंग विच इज रियली गुड फॉर देम और नॉट. yes, true. So we first of all, what we do is we help people evaluate their own ideas. Okay. Hmm. Number two, we also work on the investment model as well. If we see the application, which is, or if we see the idea, which is very potential, then we not just invest ourselves, but we also have a pool of investors with us, जिनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि they come in and they support the young startups. ये दो चीजें तो वो हैं जो ethical grounds के ऊपर we don't even charge for that. Third thing we do is, yes, if you want to develop your application, if you want to develop your website, or you want to have your technology footprint, so this is where we can come in and we can support. Wonderful. I agree. These are the ideas which can be there for everyone who are watching. Acha ji, Mudassir, coming towards apps tonight, आपने मुझे youngsters की बात की, they can come to you for seek help as well. Now I am looking for established businesses. और मैं उन established businesses की बात करूं क्योंकि including my I'll talk about even DS Global and Evolve, हम एक विंडो से चीजों को देख रहे होते हैं. I really liked your website giving a message that we do audit of your IT, page or websites and other scenarios. I really like this word क्योंकि हम तो एक ही विंडो से चीजों को देख रहे हैं और उसी लिहाज से डालते जा रहे हैं. But somebody comes and actually tells us, oh, there's that, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे tweak करें. And I really like the service. इसको थोड़ा explain करें. Why would established businesses need a postmortem or an audit report? दानियाल देखें, होता ही है कि जब आप एक बिजनेस इनिशिएट करते हैं या उसकी आप वेबसाइट या उसका कोई उसकी ब्रांडिंग बनाते हैं ना, तो वो जो आप सोच रहे हैं ना आप वो करते हैं. Hmm. सो नॉट नेसेसरली कि जो आप कर रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं या जो आपको नजर आ रहा है वो सबसे अच्छा है. Hmm. क्यों ना आप क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखें, क्यों ना आप अपनी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, क्यों ना आप एक थर्ड पार्टी व्यू लें. तो व्हाट वी डू इज वी डू अ यूएक्स ऑडिट, वी डू अ यूजर एक्सपीरियंस ऑडिट, एंड वी डू यूआई यूजर इंटरफेस ऑडिट. ये दो ऑडिट्स वो होते हैं जिसके ऊपर हम आपको रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है जब वो आपके पेज पे लैंड करेंगे. बेस्ड ऑन दैट आप उसको कैसे, देर आर द टू वेज. अदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा कुछ हो, इमेजेस लगी हो और शशका हो और ये हो और वो हो, तो शायद क्लाइंट इंप्रेस होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता. Hmm. आप नॉर्मली देख लें, आप एप्पल की वेबसाइट देख लें, आप आईबीएम की देख लें, आप एक बिग फोर की वेबसाइट देख लें, जब आप लैंड करते हैं आपको पता लग जाता है यार ये कौन है. Hmm.
So these are few things where we come in, we support you. We on our pool we have like some really senior creative directors, along with that UX auditors, UI auditors with like 10 years plus experience who come in, who see your business, जो आपसे पहले बात करते हैं कि यार आप करना है, आप करते क्या है, आपका बिजनेस क्या है, कौन से कलर स्कीम्स हैं जो आपके बिजनेस को सूट करते हैं, कौन से फॉन्ट्स हैं जो सूट करते हैं, कौन से लेआउट्स हैं जो आपके बिजनेस को सूट करते हैं. So based on all that, we design or we redo everything for you. Right. That these are amazing services you have been providing. अच्छा मेरा ना एक सवाल है and call it a very layman question also, या मैं layman point of view से actually ये पूछना चाहूँगा, and that is on the screen also. There was a word few years back which came in and then got into everything. Now I am in energy business for a long time, and the essence of DS Global standing out from other companies was that we brought Internet of Things (IT) into our operations. And I mean to Okay. say that apps के जरिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमने एनर्जी मॉनिटरिंग लोगों को दे दी, इंडस्ट्री में स्क्रीन्स मॉनिटरिंग पे लगा दी. जरा आम लोगों को एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, ये क्या थी, क्या है और क्या होगी. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करें तो ये है कि जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो आपके घर का टीवी है, चाहे वो आपके घर का फ्रिज है, चाहे वो घर में लगी हुई पानी की एक मोटर है, चाहे वो लगा घर में एसी है, जब आपके पास उसको यूटिलाइज करने का स्मार्ट तरीका आ जाता है और वो तरीका आपके लिए आपके फोन पे कंट्रोलेबल है, सही है. तो आई बिलीव दैट्स व्हाट वी कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर, दैट्स व्हाट वी से एज एन आईओटी इन अ बिगर और इन अ बिगर पर्सपेक्टिव. जब इन तमाम अप्लायंसेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके इर्द गिर्द अवेलेबल इन तमाम इलेक्ट्रिकल चीजों का डेटा इकट्ठा हो रहा है आपके पास इस चीज के मुतालिक बड़ी क्लियर इंफॉर्मेशन आ रही है कि मेरा बेस्ट यूज इस पर्टिकुलर अप्लायंस, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कैसे हो सकता है, और वो ऑटोमेटेड भी है, वो सहल भी है, वो आसान भी है, और आप वो कर भी सकते हैं, और आप अगर चाहें तो वो खुद भी कर पाए. दैट्स व्हाट वी कॉल आईओटी. यानी कि आसान अल्फाज में मैं शायद इसको इस तरह कहूंगा. और आई बिलीव लाइक आईओटी वो चीज है जिसके ऊपर दानियाल यू हैव डन लाइक ट्रेमेंडस वर्क. ठीक है, so I would say that you on your side would explain that much better. Yeah, exactly. मेरा अपना एक ख्याल है, मैं तमाम लोगों, आई थिंक इट्स अ बिजनेस आइडिया आल्सो, कि आजकल होम ऑटोमेशन पे बहुत काम हो रहा है, आजकल एनर्जी मॉनिटरिंग पे बहुत काम हो रहा है, आजकल हर वो प्रोसेस इंडस्ट्रीज के प्रोसेसेस के अंदर, क्योंकि आप कॉस्ट कटिंग की तरफ आ रहे हैं, तो यू नीड अ वेरी स्ट्रांग मॉनिटरिंग फॉर कॉस्ट कटिंग. तो आई थिंक सो कि वो तमाम जगहों पे जहां आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए उसके लिए वर्क अराउंड कर सकते हैं प्रोसेसेस को, और बहुत सारा डाटा आपको इंटरनेट क्लाउड पे मिल जाए, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस वर्किंग व्हिच हैज बीन डूइंग. अच्छा, इसी से मैं रिलेट करूंगा मुदस्सिर, ये एक ऐसी भी चीज है कि जिससे यंगस्टर्स बहुत ज्यादा आई थिंक फायदा उठा सकते हैं, और ये आने वाला दौर जो है वो डिजिटल दौर है जिसमें हर चीज पे बात हो रही है, तो उसमें ये भी आ रहा है कि अब हर रिक्वायरमेंट ऑनलाइन की होती चली जा रही है. खासतौर Exactly. पे इंडस्ट्रीज के अंदर जो डाटा है वो क्लाउड पे जाए, इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन डाटा है वो क्लाउड पे जाए. पाकिस्तान प्राइमरली इज एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड एन टेक्सटाइल ओरिएंटेड कंट्री. अभी भी Exactly. टेक्सटाइल में स्पिनिंग यूनिट्स के अंदर कितनी कॉन्स बनी, वो देसी तरीके से काउंट Mm. हो रही है, डिजिटलाइजेशन उसके अंदर नहीं है. So, do you think Internet of Things is done in Pakistan, or it has a huge future still? यार पाकिस्तान में तो अभी अगर इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद दानियाल इतनी इतना बड़ा गैप अवेलेबल है, छोटी से छोटी चीज के अंदर, बड़ी से बड़ी के अंदर, एक डाइंग और स्पिनिंग मिल से लेके एक फुल स्केल यूनिट तक इतना बड़ा गैप अवेलेबल है कि ट्रस्ट मी, अगर हम uh, क्योंकि most of my family members are from textile industry, so I can actually vouch on their behalf as well. They need people.
to help them optimize their mechanical efficiency, and no one is there. वो पोलैंड से देख रहे हैं, वो रशिया से देख रहे हैं इन 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 तमाम चीजों को। उन्होंने स्वीडिश और उन्होंने जर्मन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, और इंतहाई सिंप्लीफाइड किस्म के सॉल्यूशंस हैं। और आई कैन प्रॉमिस यू कि आपका यूईटी का बच्चा या आपका एनईडी का बच्चा या नस्ट का बच्चा, अगर वो उसके लिए वो सॉल्यूशन ना मैक्सिमम 15 से 20 दिन का काम होगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, इतना बड़ा गैप अवेलेबल है। मैं इसके ऊपर बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा उसे जो सिर्फ सोच के बैठे हुए हैं कि हम ये कर सकते हैं, यार आप लोग जाएं इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलें, वो आपको अपनी तकलीफ बताएगा, आप उसका सॉल्यूशन लेके प्रेजेंट करें। वो चीज जो उसने वहां से 3 मिलियन 4 मिलियन डॉलर की बाय करनी है, यार वो आपसे 3-4 मिलियन पीकेआर में बाय नहीं करेगा। ट्रू, वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं। ठीक है, और आइडियाज आर नथिंग more than simplifying your problems, coming up with a solution which is in a simplified form. That's like, you don't need to be a big giant. जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो जीई को जाकर रिक्वेस्ट करेगी। आप अवेलेबल है यहाँ पे, आप इस इंडस्ट्री को देखें, आप जानते हैं, आप इस एनवायरनमेंट में बैठे हुए लोगों को भी जानते हैं, आप इधर किसी ना किसी रेफरेंस को भी जानते होंगे, आप अपने एनवायरनमेंट में मौजूद हर्डल्स को भी जानते हैं, ये बाहर वाले नहीं जानते। The only thing is have that courage to actually go, present and ask कि सर आपको तकलीफ क्या है, आपकी एफिशिएंसी एज पर योर machines should be at least 80 to 85% of what you are doing right now. So what are the hurdles? हमारे पास शायद क्वेस्ट नहीं है उस चीज की। वेरी ट्रू, मतलब जाएं और टॉक टू पीपल एंड आंसर, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉक डिस्कस हुई है। I would relate it myself that we are looking for, I am looking for people in my team also who are experts for IoT and can develop platforms, companies have synergies banana. This is something which definitely we can do and talk about it. अच्छा, एक और टॉपिक है जो उसको मैं थोड़ा सा जरूर टच करना चाहूंगा। ये जो बिग गुरुज हैं ERPs के, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स की बात करें, जिसमें हम SAP B1 की बात कर रहे हैं, all these I have got SAP B1 implemented in my companies. इसका क्या फ्यूचर है? ERP development, ERP requirements for businesses, पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट जो है वो ERP का बहुत relatively न्यू तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन न्यू इन द फॉर्मेट के अभी उसको कितनी चीजें डिजिटलाइज हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप्स में तो ये मौजूद है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं है। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ERP सॉल्यूशंस इन पाकिस्तान? हमने ना दानियाल, अच्छा मैं शायद थोड़ा बदतमीज भी कंसिडर हूँ, लेकिन मैं होता हूँ, मैं एक जनरल सी बात करूंगा दानियाल, हमने ना हम चीजों को अब्यूज कर देते हैं। सही। देखें, ERPs की इम्प्लीमेंटेशंस दो तरीकों से होती है। नंबर एक ये कि एक कंपनी है जिसके प्रोसेसेस ऑलरेडी अलाइंड है, वो कंपनी ऑलरेडी ISO सर्टिफाइड थी या फर्दर सर्टिफिकेशंस के साथ थी। अगर वो मेडिसिन कंपनी है तो वो HIPAA कंप्लाइंट थी या HL7 पे थी। अगर वो किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री की थी तो वो PCI DSS के ऊपर है। अगर कंपनीज के पास ये कंप्लाइंसेस थी और वो अपने प्रोसेसेस को मजीद रिफाइन कर रही हैं, उन प्रोसेसेस की ऑगमेंटेशन कर रही हैं, तो वो ERP इंप्लीमेंट करती हैं। वो ERPs, all the big names, you actually have to adopt them. ठीक है, they ain't gonna adopt you. You adopt them because they are developed based on the best practices. ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर what we do is, का जब लग रहा होता है ना, तो you can vouch for that. यार इन्हू इंज कर दे तो इन्हू इंज कर दे। ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट जब लग रहा था, यार इन्हू इंज नहीं करना, इन्हू इंज कर दे। तो जब आपने अपनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस से खुद को दूर कर लेना है, सो भाई वो रहने दो। अच्छा, दूसरा सेगमेंट है उन लोगों का जो इसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट देते हैं, वो अपने प्रोसेसेस को उनके साथ अडॉप्ट भी करवाते हैं और अडेप्ट भी करवाते हैं,
और उन कंपनीज को 2 से 3 साल लगते हैं उसको उस फेज शिफ्ट से गुजरते हैं, और 3 साल के बाद मोस्ट ऑफ दोज कंपनीज आर ऑटो पायलट। ठीक है। अब तीसरा एक और सेगमेंट है दानियाल, वो है जब आप एसएमईज को देखते हैं ना, तो एसएमईज को लगता है कि उनके पास ईआरपी होनी चाहिए। अब एसएमई को ईआरपी का जो ओवरऑल आइडिया होता है ना, जब आपसे डिस्कस करता है, यार मुझे एचआर नहीं चाहिए क्योंकि मेरे सारे सेल्स में ना वो मैनुअल है। हाँ सही। वो जो फाइनेंस का मॉड्यूल है ना, उसमें ये 3 चीजें नहीं करनी है आपने आपने मुझे ना एडजस्टमेंट डाल के देनी है इसमें। मेरे 2 फ्रंट बनाने हैं। अब मैं शायद बदतमीज कंसिडर हूंगा यार, आपने 2 फ्रंट बना के देने, एक एफबीआर वाला तो एक विदाउट एफबीआर वाला। I know ठीक है। this is a reality of small businesses in Pakistan. तो ठीक है। अच्छा ये ईआरपी नहीं है, अब ये ईआरपी नहीं रही, माजरत, अब ये आपका कस्टमाइज्ड बिजनेस प्रोसेस है। ठीक है, जिसको आपने ऑटोमेट कर लिया है, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं किया। तो ईआरपी, ठीक है, इसको बराए मेहरबानी ईआरपी ना कहा करें कि मैंने अपनी कंपनी में ना ईआरपी इंप्लीमेंट की हुई है, क्योंकि मेरा फाइनेंस ऑटोमेटेड है। जो मेरा चेक आता है ना, जब उसकी ऑनलाइन पेमेंट आती है तो मुझे बैंक से मेल आती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैश रिसीव बाय बैंक, और या मेरा चेक क्लियर होता है तो मुझे पता लग जाता है, या मेरा जब सेल्समैन कैश ले लेता है तो वो पता लग जाता है कि जी वो उसने पैसे ले लिए। यार ये दिस इज द ऑटोमेशन ऑफ योर बिजनेस, which is a very basic 10 to 15% of the digital transformation or the initial step towards it. That's not ERP. ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक So इनका सेगमेंटेशन है 3 जगह पे। एक वो जो जो they respect ERP. Number 2 is the ones they respect ERP but they want to get respected as well against that. And number 3 is the one जिसको जिसको सॉफ्टवेयर हाउसेस जिन चीजों को लेवरेज करके थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करते हैं कि जी मैं आपको ये ईआरपी लगा के दे रहा हूँ, और आपने सिर्फ एक फाइनेंस का उसको सिस्टम या पीओएस और सेल्स का और स्टॉक मैनेजमेंट लगा के कह दिया जी ये ईआरपी लगी हुई है। ठीक, समझ गए। सो मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ भी है, मेरा थोड़ा सा इस चीज पे नाराजगी भी है कि यार अपनी ऑडियंस को या अपने क्लाइंट को ना से सीधी और साफ बात बताए कि भाई ये जो लगा रहा हूँ ये फाइनेंस का मॉड्यूल है, इसमें भी एचआर भी नहीं है, प्रोक्योरमेंट भी नहीं है, इसमें तेरे बाकी प्रोसेसेस भी नहीं है, ये ईआरपी नहीं है। ये तेरे प्रोसेस की। ठीक, I do understand. It's a very very strong point as well. ERP का फ्यूचर क्या है और ERP की वर्किंग क्या है? अच्छा, ये सवाल ऐसा है जो मैं अगला करने जा रहा हूँ, which has been talked a lot, लेकिन मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करूंगा। ये कोविड की सूरत हाल ने जहां अपॉर्चुनिटीज काफी कम कर दी हैं, पहले ही काफी कम थी यंगस्टर्स के लिए ओवरऑल, बट सिंस यू do a lot of mentoring for new ideas, new developers, new workers, aspirants of people who would like to be like you. Uh, so a very simple question is कि ये कोविड की वजह से नए आइडियाज और स्टार्टअप्स को किस तरह का होना चाहिए? कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं डू यू थिंक आर डेवलपिंग और आर गोइंग टू डेवलप? और डू यू थिंक पीपल हु हैड आइडियाज लेकिन नाउ दे आर स्टक्ड अप इन बिटवीन ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, उनके लिए क्या सजेशंस हैं? दानियाल, कॉकरोच का सर्वाइवल आज तक जो है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ, फ्रॉम बिग बैंग टिल डेट, बताऊं क्यों है? क्योंकि उसने हर एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज किया है, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया है और फिर उस पर नखरे नहीं किए। कोविड की वजह से आई फुली अंडरस्टैंड, कंपनीज बंद हुई हैं, पे चेक्स कम हुए हैं, लोग ले ऑफ हुए हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा डैमेज था पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे लोगों के लिए। ठीक, सही। कंपनीज बंद भी हुई हैं, कंपनीज नई पैदा भी हुई हैं। एयरबीएनबी अगर 9 साल लगाने के बाद 6 हफ्ते में अपने आप को खुद कह सकता है कि यार ये 6 हफ्ते इससे बाहर कहता है। एक कंपनी $1 बिलियन से अगर $1 मिलियन पे आई है, तो एक कंपनी $1 मिलियन से $1 बिलियन पे भी गई। तो अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो हर एरा का, हर प्रॉब्लम का एक हिस्सा होती हैं। तो आज के टाइम में, कोविड के टाइम में, शायद रियलाइजेशन लोगों के अंदर
ये आनी चाहिए कि अपने आइडिया को आपने आज के टाइम में वैलिडेट करने के लिए नहीं बैठना। नहीं, ई कॉमर्स ने बूम किया, आपकी ई कॉमर्स 19% के सीओडी से चली गई है 33% के ऊपर। वो एग्री। 33% से एक्सपेक्टेड है कि वो अगले 6 माह से 8 माह के अंदर 47% हो जाएगी। ट्रू। आज तक आपने जितनी भी ई कॉमर्स के बारे में देखा था वो सिर्फ इस हद तक था कि आपने घर से पिज्जा हट से या मैकडोनल्ड से कुछ ऑर्डर कर दिया है, या अदरवाइज आपने दराज से कुछ चीज ऑर्डर की हुई एग्री। है। आज की डेट में डायमेंशंस ही चेंज हो गई हैं। अगर घर में जूस भी नहीं है ना, तो आप वो ऑर्डर कर देते हैं, वो आपके नियरेस्ट किसी दुकान से, वो बेशक अल्फते से या किसी और शॉप से आ रहा होता है, सही है। मगर आपके पास डायनामिक्स चेंज हुए हैं ऑनलाइन बाइंग के। अब ऑनलाइन बाइंग एक सेगमेंट है, सिर्फ सिर्फ एक सेगमेंट। आपके पास राइडर कंपनीज जो थी, चाहे डिलीवरी वाले हों चाहे वो कोई और कंपनी हो, अगर एयरलिफ्ट अपने आप को शिफ्ट कर सकती है ना एयरलिफ्ट प्रोसेस के अंदर, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। सही। ट्रू। सो द ट्रू। point is, every phase of life there are some opportunities and there are some hurdles. It's totally based on you. Do you actually want to focus on those opportunities or do you want to focus on the hurdles? एग्री। अच्छा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ ले रहा हूँ। हमारे पास कमल इकबाल का क्वेश्चन है, एंड been asked that would you prefer to have a customized ERP for the company or use the famous ones like Oracle or SAP? If you are a big group and you have all the processes pretty aligned, if you have everything in the best order possible, then go for someone like Oracle or SAP. If not, if not, then go for a customized ERP, which जहां पे आपको ये ना सोचना पड़े कि यार इसको ऐसे कर लेते तो ऐसे सही होता, तो फिर वो करते। नहीं, अगर इफ यू आर एन एसएमई एंड यू आर नॉट fully to the par where you have every single excellence, you know what, titled, no, go for a customized ERP. कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, कोई कबाहत नहीं है उसके अंदर। ईआरपी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर आपके पास ऑरेकल और सैप नहीं है तो आप एग्जिस्ट नहीं करते। आपके प्रोसेसेस जितने स्ट्रीमलाइंड हैं, जितने ऑटोमेटेड हैं, आपके प्रोसेसेस जितने नीट और क्लीन है, आपको देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सो माय आई बिलीव लाइक मेरा पर्सनल आंसर इसके ऊपर यही है कि इफ यू हैव प्रोसेसेस properly in sync and you want to scale up, go for someone like Oracle and SAP because they are doing it based on the best practices. You cannot challenge them कि यार Absolutely मैं agree. ये सही करता हूँ आप गलत करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी और आपका बिजनेस जो है वो इतना ज्यादा एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता जो Oracle और SAP की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर है, देन गो फॉर अ कस्टमाइज्ड वन। Absolutely agree. And Kaval, just to add on to this discussion, I think in the very first year we went on SAP B1 because of the growth of the company. मेरा क्योंकि बुनियादी ताल्लुक एनर्जी सेक्टर से, एनर्जी की कंपनी थी, so I can relate. Going on SAP B1 was कि we were absolutely clear in our processes. Procure to payment का cycle मुकम्मल clear था, तो हमारे लिए decision बड़ा आसान था. But yes, it is expensive. But adding on to Mudassir discussion, companies like Abacus now are also offering cloud-based pay-as-you-go type solutions. जैसे SAP B1 का एक pay-as-you-go solution जो है वो कोई I think so comes around कोई $150-130 a month, जिसमें you can get one license and get yourself on board and then later on switch to a on-prem solution. So I think हर तरह के solutions मौजूद हैं. I hope this does answer. Coming towards the end of the session, Mudassir, Amir Iftikhar का question है कि sir, any recommendations to think innovative and come up with a wow idea? wow idea आएगा तो इफ्तिखार आमिर देखते हैं कि मुदस्सिर बताएंगे या नहीं बताएंगे. आई थिंक बट अच्छा मुदस्सिर इसके साथ ये है कि जो प्लेट शेयर करते हैं सबके साथ, सो आई एम प्रीटी श्योर कि मुदस्सिर बताएंगे. तो wow दानियाल idea. ये दानियाल ये जिस बंदे ने ये मैसेज किया है ना, he is the one who actually gives out wow ideas without even thinking twice कि मैं किसको बता रहा हूँ. He's Absolutely that agree. guy. So I can give you, I can, this is, and he is like absolutely an elder brother to me.
तो मेरी कोई मजाल नहीं है मैं इनको ये बताऊं कि हाउ टू कम विद एन वाव आइडिया, बिकॉज आई बिलीव इन वन थिंग कि whatever you want to do, if you really want to do it, that idea is for sure going to be a wow idea. अगर आप सिर्फ if you're just a parrot, like you just want to talk, then भाई बहुत लोग हैं मार्केट में जो बोल सकते हैं. अगर करना है भाई, ये एमवीपी पड़ा हुआ है, ये लीन स्ट्रैटेजी मॉडल पड़ा हुआ है, ये बिजनेस मॉडल पड़ा हुआ है, कल से ना इसके ऊपर काम शुरू हो रहा है. ये परसों मेरा क्लाइंट आ गया था, ये भाई पीएनएल देख रहा हूँ. दैट्स इट यार. ये कोई वाव आइडिया शाइडिया जो होती है ना, ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आई बिलीव हम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया. ये वाव आइडिया नहीं होता. आप यू गो फॉर इट. दो में से एक काम ही होगा ना यार, या चीज सही चलेगी या नहीं चलेगी, तीसरा तो कुछ नहीं है. Yeah, agree. Why not? Again, comes down to that point as well. Mudassir, that's such an amazing discussion we had. मैं अब थोड़ा सा conclusive questions पूछूंगा जिस पे I think your input would go a long way. पाकिस्तान में मैं जरा आम लोगों के अंदाज में सवाल पूछता हूँ. I live in Lahore. I am a person who lives in Karachi, Rawalpindi. कंप्यूटर साइंस में कुछ किया है, जॉब्स की सर्च कर रहे थे, जॉब्स मिल नहीं रही. व्हाट टू डू? क्या किया जाए घर बैठ के? आजकल तो हालात ऐसे, जॉब्स नहीं है, तो व्हाट टू डू? अच्छा दानियाल, इसमें सवाल दो जगह पे डिवाइड कर लेते हैं. एक वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है लेकिन उनके पास जराए हैं कि वो सरवाइव कर सकते हैं 6 से 8 में. और एक वो लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है और उनके दे आर गोइंग हैंड टू माउथ. ठीक है, तो वो लोग जिनके पास जराए हैं, उनका जो भी स्किल सेट है उसको प्लीज एनहांस करें. आपके पास बहुत अच्छी वेबसाइट्स अवेलेबल है. EDX है, आपके पास Coursera है, आपके पास लाइक यू कैन वी हैव नंबर ऑफ. अपने स्किल सेट को इंक्रीज करें, अपने स्किल सेट को मजीद पुख्ता करें, मजीद बेहतर करें, क्योंकि जैसे ही आप कोविड से निकलेंगे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन तब तक बहुत शार्प हो जाएगा. वो लोग जो इस टाइम ड्यू टू कोविड किसी इस वजह से परेशानी में है कि जॉब भी नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो आई बिलीव फॉर देम अगर छोटी से छोटी चीज भी करनी पड़ रही है तो करें. एट द सेम टाइम ये वो टाइम है जिसमें आपको अपने कंपटीशन को भी देखना है. आप कहाँ पे खड़े हैं और आपकी नेक्स्ट ग्रोथ लेवल जब आप इस एरा से बाहर आएंगे तो कहाँ पे होंगे. तो बराए मेहरबानी बजाय इसके कि आप खुद को डाउन फील करवाएं, अपना सर उठाएं, इर्द गिर्द देखें. वॉट एवर कम्स टू योर रोड, वॉट एवर यू कैन फेस, गो फॉर इट, अर्न थ्रू इट. चाहे आपको मोटरसाइकिल चला के डिलीवरी करनी पड़ती है, चाहे आपको कुछ और करना पड़ता है, यू कैन नॉट स्टॉप. There is no point and there is no particular thing which in which I can say कि यार आपका राजिक चेंज हो गया. राजिक तब भी वही था, राजिक अब भी वही है, राजिक कोविड के बाद भी वही होगा. जबरदस्त बात. तो ये सब चीजें आप पर डिपेंड करते हैं. व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ. यू वांट टू स्टे नेगेटिव, मर गए तो फिर आप मर गए, डोंट कंप्लेन. इफ यू वांट टू स्टे पॉजिटिव कि इंशाल्लाह ताला अगर राजिक ने पहले भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो छोड़ेगा वो अब भी नहीं, तो यार आपके पास अपॉर्चुनिटी से वो ना बिखरी पड़ी है, वो आपने उठानी है, आपने कलेक्ट करनी है और आप उनको उन पर सिर्फ एक्ट करना है. Wonderful thoughts. My last question is this, of course, from the interview, people who are watching you, they would like to connect with you or would like to seek your guidance. What is the best way to find yourself, Appstinai team, other people around? Easy way to connect, and for what kind of inputs you are available to guide the people? मेरी नाचीज बंदा हूँ मैं, जो जहाँ पे असिस्ट कर सकता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, नो. वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, आई बाउंड माई सेल्फ कि मैं सिर्फ असिस्ट कर सकता हूँ. और जिन चीजों में मैं असिस्ट कर सकता हूँ शायद वो ये कि आई कैन असिस्ट यू इन वैलिडेटिंग योर आइडिया बाय कनेक्टिंग यू विद द पीपल. ठीक है, अगर वो एनर्जी सेक्टर से है तो दानियाल प्लीज इनको गाइड कर दें. अगर वो टेक साइड से है तो आई कैन रिक्वेस्ट फ्यू टेक पीपल कि यार ये काम करना है इन लोगों ने, इनको गाइड कर दें. वो चीजें जो मेरी
बसात में होंगी, उसके ऊपर आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको खुद गाइड करूं। अगर आप चेंज मैनेजमेंट देखना चाहते हैं तो आपको मैं मोहम्मद अली तूसी से मिलवा सकता हूँ। अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि यार यूएस में ऐसे कौन से मॉडल्स हैं जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, तो आई बिलीव दैट कि मैं आपको आमिर इफ्तिखार से कनेक्ट करवा सकता हूँ। अगर पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपके पास बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं एंड यू वांट देम टू गेट फंडेड, तो मैं आपको मीर अनवर से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। सो based on that friends and family network, first of all I can try to do that one thing जहाँ पे मैं आपको कोई भी असिस्टेंस दे सकूँ। नंबर दो ये कि अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है एंड यू वांट दैट टू बी फंडेड, तो मैं उस पे भी कोशिश करूंगा मैं आपकी हेल्प कर सकूं। लेकिन यू नीड टू बी वेरी सीरियस विद द आइडिया। इट शुड नॉट बी कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ या एक ऐप बना रहा हूँ और मैं उसको एक फूड पांडा और खड़ा करना चाहता हूँ या एक उबर और बनाना चाहता हूँ। नॉट दैट, समथिंग क्रिएटिव, इनोवेटिव, and I'll try my level best wherever I can be of any help. Wonderful, wonderful. Mudassir, it has been an absolute pleasure talking to you. Great ideas being discussed and thoughts. Just to conclude, I think सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन I think people who are really looking for making IT as one of their career or applied IT solutions as a career option, I think Mudassir is the right person to connect with. Thank you, Mudassir. On behalf of Evolve team, I would like to specially thank you for your time today. Thank you so much. Right. It has been a pleasure, and we look forward for having lots of further sessions with you as well. I'd like to thank you, Mudassir, for your time today. Thank you so much. Thank you so much, Daniel. Thank you. All right, guys, this was Mudassir Malik. I think it was a great discussion today. आज हमने बहुत सारी IT से related बातें की, ERP solutions related बातें की, and I'm pretty sure this session would go a long way for IT aspirants and people who are looking forward to make a career in IT solutions and services. Thank you very much. I especially would like to thank all the audience who have joined today, and thank you very much for accepting my absence for a lot of time. But I'm back, and we'll be having lots of sessions. Aman is already there doing lots of sessions. You can tune into Evolve Talks on YouTube. Just go down, write down Evolve Global PK, and you will find lots of material of success stories in Pakistan. Thank you very much. This is Daniel signing off from Evolve Talks. Take care of yourself.